پیپلز پارٹی سندھ سے اسلام آباد کی جانب چل پڑی۔ پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا مزار قائد سے آغاز۔ پارٹی پرچموں کی بہار، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، جالے پرجوش۔ لانگ مارچ مختلف شہروں میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ لگائے گئے۔ لانگ مارچ کے شرکاء 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی سے سندھ سے اسلام آباد کی جانب نکل پڑی۔ پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا مزار قائد سے آغاز ہو گیا۔ پارٹی پرچموں کی بہار، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگیں، جالے پرجوش رہے۔ لانگ مارچ مختلف شہروں میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ لگائے گئے۔ لانگ مارچ کے شرکاء 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت نے صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان کو اب جانا پڑے گا۔ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں، موجودہ حکومت کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں، بلاول بھٹو زرداری کی للکار۔ تحریک انصاف حکومت کے خلاف بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ شروع کر دیا، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ قائد عوام اور شہید بے نظیر کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہر پاکستانی کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا، لیکن کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ نہ اہل وزیر اعظم جس نے نہ صرف کراچی کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، صوبہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، صوبہ بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، صوبہ پنجاب کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، پختونخوا کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہے، اسلام آباد پہنچ کے ہم اس حکومت پہ حملہ کریں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ موجودہ حکومت 18ویں ترمیم کو ختم کر رہی ہے، این ایف سی ایوارڈ نہیں دے رہی۔ وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت کم وسائل کے ساتھ زیادہ محنت کر کے صوبے کی خدمت کر رہی ہے۔ عمران کو بھگائیں گے تو تمام صوبوں کو ان کا حق ملے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں۔ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسلام آباد پہنچ کر حکومت پر حملہ کریں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے سندھ حقوق لانگ مارچ کا آج دوسرا روز ہے۔ تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ کراچی کی طرف گامزن ہے۔ بلاول بھٹو 3 سال کا حساب لینے اسلام آباد ضرور آئے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمارا دامن صاف ہے، حساب ضرور دیں گے۔ ہم بھی آپ سے 15 سال کا حساب مانگنے آئے ہیں۔ 15 سال سے سندھ پر پی پی کی بلا شرکت غیر حکومت ہے۔ کراچی سے کچرا اٹھائے گا کون اور نالے کون صاف کرائے گا؟ تیر کو توڑنا اور سندھ کو جوڑنا ہے۔ 2023 میں سندھ میں تبدیلی آ جائے گی، شاہ محمود قریشی کا بیان۔ آج سندھ کے لوگوں کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ میں 2013 میں گیا، ارباب صاحب نے میرا ساتھ دیا۔ میں 2018 میں گیا، ارباب صاحب نے میرا ساتھ دیا، اور میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں اور برملا کہنا چاہتا ہوں، پیر صاحب پگاروں نے میرا ساتھ دیا۔ شکارپور والوں، میں آج تم سے شکارپور کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں، آغا سراج درانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کو سندھ کا سپیکر پیپلز پارٹی نے منتخب کیا یا تحریک انصاف نے منتخب کیا؟ اگر پیپلز پارٹی نے منتخب کیا تو آج آغا سراج درانی کی شکارپور میں کیا حیثیت ہے، کیا کیفیت ہے؟ حقوق سندھ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو 3 سال کا حساب لینے ضرور اسلام آباد آئیں، ہمارا دامن صاف ہے، حساب دیں گے۔ ہم بھی آپ سے 15 سال کا حساب مانگنے آئے ہیں، ہم احتساب سے گھبرانے والے نہیں ہیں، مگر 15 سال سے سندھ پر پیپلز پارٹی کی بلا شرکت غیر حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سے کچرا کون اٹھائے گا، نالے کون صاف کرائے گا؟ کراچی کے عوام کو دن دہاڑے گن پوائنٹ پر لوٹا جا رہا ہے۔ سندھ سے میرا رشتہ کئی 100 سال کا ہے، آج سندھ کے عوام کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔
अली जैदी कहते हैं साबिक हुक्मरान खजाने को बेदर्दी से लूटते रहे, अवाम को हर फैसला अपने ज़मीर की आवाज़ पर करना चाहिए। पीपल्स पार्टी जमात नहीं जरदारी माफिया है। बिलावल भुट्टो की तकरीर कभी असम्बली में नहीं सुनी। बिलावल भुट्टो की तकरीर ऐसे होती है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी। जरदारी माफिया सिंध की ज़मीनों पर कब्जे कर रहा है। सिंध में डाकू राज है। जरदारी 11 साल जेल में रहे, लेकिन जायदादें कैसे बनी? सिंध के हुक्मरानों ने अवाम के हुकूक सल्ब कर रखे हैं। साबिक हुक्मरान खजाने को बेदर्दी से लूटते रहे। विफाक ने सिंध को रवां साल 2000 अरब दिए। असद उमर कहते हैं विफाक के पैसे कहां लग रहे हैं किसी को पता नहीं। बिलावल भुट्टो 1 साल मजीद इंतजार करें, सिंध से जुल्म खत्म होने जा रहा है। जरदारी साहब इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है। इमरान खान जरदारी को भगाने के लिए सिंध आ रहे हैं। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लाहौर का दौरा किसी सियासी तब्दीली के हवाले से नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनना था, उन्होंने मंडी बना दिया। ताकत की सियासत और पैसे का इलेक्शन मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकते। पंजाब में इलेक्शन के बजाय लोगों का दिल जीतने आए हैं। MKM पेशावर सियासतदानों की जमात नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान। जनाब, साथ देने के लिए वो जो मैंने ख्वाब आपसे शेयर किया है, वो ख्वाब हमसे शेयर कर लेंगे, हमारे इस ख्वाब को ताबीर देने लगेंगे हमारे के साथ। हम खानदानी सियासत के खिलाफ हैं, हम मौरूसी इख्तिदार के खिलाफ हैं, हम पेशावर सियासत के खिलाफ हैं। ये लॉन्ग टर्म पे बात करेंगे, किसी शॉर्ट टर्म पे बात करने नहीं आए। हुकूमतों को बनाने और गिराने का काम हमने अपने जिम्मे नहीं लिया हुआ। अपोजिशन के अदम एतमाद में डेडलॉक आ गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन के लिए फैसले करना मुश्किल है कि बंदर बांट कैसे करनी है। लॉन्ग मार्च बिलावल के बस की बात ही नहीं। बिलावल साहब आप लाल हवेली आए, आपको इस्तीफा देते हैं। इमरान खान के खिलाफ तमाम मफाद परस्त इकट्ठे हो चुके हैं। वक्त आने पर इमरान खान सियासी साइबर हमला करेंगे। ये अपने बंदे बता दें इन्होंने अब कहां रखने हैं 9 दिन। न छांगा मांगा है और न मरी है, और वक्त आने पर इमरान खान सियासी साइबर अटैक करेगा। आप 9 दिन अपने बंदों को 2 दिन स्पीकर के और 7 दिन वोटिंग वाले दड़बे में नहीं रख सकते, ये फुर्र करके उड़ जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल इस्लामाबाद आ रहे हैं, कितने लोग आपके साथ हैं। अपोजिशन वाले पहले एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, अब सारे मुफाद परस्त इकट्ठे हो गए हैं। मैं इमरान खान का इस्तीफा देने जा रहा हूं। लाल हवेली आओ ना, इस्तीफा देते हैं आपको। उधर क्या करने जा रहे? वही निकाला आपका क्या? बिलावल साहब लाल हवेली आए, आपको इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा लगाई हुई है, आप लोगों ने मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि बंदर बांट कैसे होनी है। हमें अपने इत्तेहादियों पर एतमाद और फख्र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जहांगीर तरीन से एहतियाब हो जाएं। इमरान खान अपोजिशन पर सियासी साइबर अटैक करेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ हैं, जहांगीर तरीन भी हुकूमत के साथ हैं। अपोजिशन ने सिर्फ सियासी दुकान चमकाई हुई है। जहांगीर तरीन इलाज के लिए लंदन गए हैं, वापस आ जाएंगे। नहीं, हुकूमत के साथ रहेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तरीन साहब की तबीयत थोड़ी जो है वो खराब है, लेकिन इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। अभी लंदन गए हुए हैं, वापस आके वो हुकूमत के साथ है, कोई मसला नहीं। चौधरी बिरादरान भी जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं वो देखिए लोगों ने फैसले करने होते हैं अगली सियासत को सामने रख के, अगले मामलात को सामने रख के। ये जो इस वक्त की अपोजिशन है उनके साथ कौन जाएगा जिनका यही नहीं पता कि इनका वज़ीर आज़म कौन है, इनका लीडर कौन है। 8-8 घंटे मैंने कहा 8 घंटे शहबाज शरीफ को बना दें, 8 घंटे फजलुर रहमान को बना दें, 8 घंटे जो है वो शहबाज शरीफ को बना दें, और बिलावल और मरियम चूंकि बच्चे हैं अभी उनको 4-4 घंटे के लिए दे दें। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं बिलावल फालूदे और पापड़ वाले के नाम पर बनाई गई करप्शन छुपाने के लिए निकला है। बिलावल आज अपने वालिद की करप्शन छुपाने के लिए निकले हैं। बिलावल बताएं आज किस मुंह से स्टील मिल्स की बात कर रहे हैं। स्टील मिल्स की बात करने वालों ने दोनों हाथों से स्टील मिल्स को लूटा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं बिलावल फालूदे और पापड़ वाले के नाम पर बनाई गई करप्शन छुपाने के लिए निकला है। बिलावल आज अपने वालिद की करप्शन छुपाने के लिए निकला है। बिलावल बताएं आज किस मुंह से स्टील मिल्स की बात कर रहे हैं। स्टील मिल्स की बात करने वालों ने दोनों हाथों से स्टील मिल्स को लूटा है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का बयान।
अपोजिशन सिर्फ मुलाकातों में ही अदम एतमाद ला रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं अदम एतमाद का शोशा सिर्फ चाय की प्याली में तूफान है। कौम को अदम एतमाद से कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन तरक्की के सफर की राह में रोड़े अटका रही है। उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना था कि सियासी मुखालिफिन अदम एतमाद की बातें सिर्फ हवा में कर रहे हैं। तहरीक का शोशा चाय की प्याली में तूफान के मुतरादिफ है। कौम को ऐसी तहरीक से कोई दिलचस्पी नहीं। अवाम सिर्फ तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन तरक्की के सफर की राह में रोड़े अटका रही है। इक़्तिदार की खातिर सियासत करने वाली अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आएगा। इनमें अदम एतमाद लाने का हौसला ही नहीं। हुकूमत और अपोजिशन में हमेशा करप्ट अशराफिया होती है। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने खाने के निवाले पर भी टैक्स लगा दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई करप्ट अशराफिया हैं। हर बहरान में हुकूमत के लोग मुलव्विस होते हैं। नैब बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब मेगा करप्शन केसेस मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। नैब ने मुश्तरका तहकीकाती टीम का निज़ाम वज़ा किया है। 4 साल में एहतसाब अदालतों ने 1405 मुल्जिमान को सजा सुनाई। नैब यूएन इंसदाद बदउनवानी कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान का फोकल इदारा है। पाकिस्तान सार्क एंटी करप्शन फोरम का चेयरमैन है। नैब सार्क ममालिक के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखता है। नैब ने नवंबर 2021 तक बदउनवान अनासिर से 584 अरब बरामद किए। एहतसाब अदालतों में 1237 केस ज़ेर समाअत हैं। ज़ेर समाअत केसेस की मालियत तकरीबन 1335 अरब रुपए है। विफाकी वजीर मुराद सईद ने रेहाम खान को अपने खिलाफ मुबैना तौर पर जारी प्रोपेगेंडा और बहतान तराशी पर कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहते हैं रेहाम खान 14 रोज में तहरीरी माफी मांगे, बसूरत दीगर 1 अरब रुपए हर्जाने का मुकदमा दायर करूंगा। विफाकी वजीर मुराद सईद ने रेहाम खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाल ही में वजारतों को दिए गए अहदाफ की तकरीब मुनक्किद हुई। इनकी वजारत ने 100% अहदाफ हासिल करके पहला नंबर लिया, जबकि आपके एक मुसव्विदे से इस कारकर्दगी को मुतनाज़ बनाया गया, जिससे न सिर्फ इनकी हतक हुई बल्कि वजारत से मुंसलिक अहलकारों की भी हौसला शिकनी हुई। नोटिस में कहा गया कि आपके नाम से पहले एक मुसव्विदा लीक हुआ, जिसकी आज तक आपने तरदीद नहीं की। शाये करदा मुसव्विदे का हवाला देकर मुराद सईद पर तहमत लगाई गई। आप 14 यौम में तहरीर की वजाहत करके माफी मांगे, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। भारतीय उरूर को खाक में मिलाने का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के आज 3 साल मुकम्मल। पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, चाय भी पिलाई, जज्बा खैर सगाली के तहत भारत वापस भी भेजा। भारत को हमेशा फैंटास्टिक टी याद रहेगी। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था। 3 साल कबल 27 फरवरी को बालाकोट में रात के अंधेरे में भारतीय जारहियत का शाहीनों ने दिन के उजाले में दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी पर भारतीय तैयारा मार गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन ने तबाह होने वाले जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और पाकिस्तानी हदूद में आ गिरा। पाकिस्तान के शाहीनों ने पायलट को चाय पिलाई, जो कि फैंटास्टिक टी के नाम से मशहूर हुई, जबकि पायलट को जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भारत के हवाले कर दिया गया। इस मार्के से मंसूब पाक फिजाइया की जंगी गैलरी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट भी अभिनंदन के जेर इस्तेमाल यूनिफॉर्म और जंगी हवा बाजी में इस्तेमाल होने वाला सामान दुश्मन की पिस्पाई की दास्तान सुना रहा है। गैलरी की एक दीवार पर अभिनंदन के तैयारे को मार गिराने वाले विंग कमांडर नुमान अली खान, भारत के दूसरे जहाज को मार गिराने वाले स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, जबकि भारत के खिलाफ अहम मिशन में शामिल ग्रुप कैप्टन फहीम खान की तस्वीर आवेजा हैं। 27 फरवरी को पाक फिजाइया की जुर्रत का यह पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान और भारत के माबैन जंगों के दौरान पाक एयरफोर्स की जानिब से दुश्मन के हवाबाजों को नाकों चने चबवाने और उन्हें कारी जर्ब लगाने की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क और कौम की सलामती के लिए पुरअज़्म और गैर मुतज़लज़िल हैं। 27 फरवरी 2019 को भारत को साबित करके दिखाया, मुज़ाकरात को कभी भी कमज़ोरी की अलामत नहीं समझना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल पर यकीन रखते हैं। मुज़ाकरात को कभी भी कमज़ोरी की अलामत नहीं समझना चाहिए। हमने 27 फरवरी 2019 को भारत को साबित करके दिखाया कि जब इसने हमले का इंतखाब किया, उन्होंने कहा कि कौम की हिमायत से हमारी मुसल्लह अफ़वाज हर सतह पर जारहियत का जवाब देंगी और गालिब आएंगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 3 साल मुकम्मल हो गए। नाकाम भारतीय जारहियत का पाक अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। पाक फ़िज़ाइया ने भारत को 2 तैयारे गिराए। अवाम ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया है। मुज़फ्फराबाद से मिर्ज़ा शहजाद की ये रिपोर्ट देखिए। सत्ताईस फरवरी का दिन मुल्क पाकिस्तान की तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन है, जब मसल्लह अफवाज के शाहीनों ने दुश्मन को फिजाओं में ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी भूल नहीं सकता। मक्कार दुश्मन की रात के अंधेरे में दरअंदाजी का जवाब पाक फजाइया के जवानों ने दिन की रोशनी में देकर दुश्मन के तैयारों को आसमान से जमीन पर गिराकर इसका गुरूर खाक में मिलाकर रख दिया। सरप्राइज डे के मौके पर आजाद कश्मीर की आवाम ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश की है। इंडिया जो है वो दरख्तों को गिरा के क्लेम कर रहा था और हमने एक्चुअली वहाँ पे उनका त्यारा गिरा के और फिर उनको वापस हैंड ओवर सबूत के तौर पे दिया है कि ये आपका बंदा हमने पकड़ा था और अब हम इसको छोड़ रहे हैं। तो ये हम अपने पाक फोर्सेस की बहादुरी के नाम ये दिन करते हैं। बुरा सोचेगा इंशाल्लाह हमारी आर्मी, हमारी एजेंसीज, हमारे तमाम जो इदारे और हमारी पॉलिटिशियन। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 20 अमवात हुई। मुल्क भर में कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 30,173 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 847 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,08,504 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 36,803 है। कोरोना से मुतासर 11,013 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना मुतासर मुस्बत केसेस की शिद्दत जो है वो 2.11% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर बरकरार। आलमी वबा कीमती जानें निगलने में मसरूफ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और 847 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना से जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 30,173 हो गए, जबकि मजमूई केसेस 15,08,504 हो गए हैं। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.11% रही है। NCOC के मुताबिक सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 5,67,309, खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,051, पंजाब में 5,01,108 हो गई। इस्लामाबाद में 1,34,292, बलूचिस्तान में 35,325, आज़ाद कश्मीर में 42,946 और गिलगित बल्तिस्तान में 11,473 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 13,497 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 8,067, खैबर पख्तूनख्वा 6,246, बलूचिस्तान में 375 और आज़ाद कश्मीर में 787 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं।